will request our State President, Dr. Sharad Patankar and Dr. Nitin Juneja, our Honorary Secretary, to honor our distinguished ML Rathi Oration Speaker Awardee, Dr. Purnindu Saxena. Another side. सर सामने देखो। मुझे आज जिनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, शायद वो हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे चिकित्सक हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। डॉक्टर पुर्निंदु सक्सेना आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं और छत्तीसगढ़ IMA का एक प्रेस्टीजियस ओरेशन डॉक्टर ML राठी ओरेशन हमारे छत्तीसगढ़ IMA का और छत्तीसगढ़ IMA की एनुअल कॉन्फ्रेंस का एक प्रेस्टीजियस ओरेशन है, जिसको देने के लिए आज पुर्निंदु सर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि एक कस्टम है, मुझे सर का इंट्रोडक्शन देना होगा, तो मेरे ख्याल से ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। और सर का इंट्रोडक्शन हम सभी परिचित हैं। सर VY हॉस्पिटल के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। सर ने MBBS अपना रायपुर से किया। सर की प्राइमरी एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर से हुई है। सर का ग्रेजुएशन 1989 में और सर का पोस्ट ग्रेजुएशन 93 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर से हुआ है। उन्होंने DNB की परीक्षा जो उत्तीर्ण की थी वो 1994 में की थी। सर डॉक्टर प्रोफेसर NS लॉर्ड और डॉक्टर BB जोशी जो ऑर्थोपेडिक के फादर फिगर्स हैं, उनके साथ काम किया हुआ है 93 से 95 में। सर की ट्रेनिंग ओवरसीज में सर ने डिप्लोमेट ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन टेक्नोलॉजी डंडी से UK से किया 2002 में। सर ने MCH की उपाधि लिवरपूल से प्राप्त की। सर ने FRCS की उपाधि ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक पे एडिनबर्ग UK से प्राप्त की। इसके बाद सर ने लिवरपूल में NHS में भी काम किया है। सर के नाम पे 50 प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन वेरियस इंटरनेशनल जर्नल्स में है। एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ लेक्चर ऑन चेस and he has edited that, and in the book written by Dr. BB Joshi, who is a father figure in orthopedics and inventor of a chess implant, which every orthopedician is aware of who is using that. His professional affiliations are, he is a member of Institute Body of AIIMS Raipur. He is a chairman of Scientific Committee Chhattisgarh Orthopedic Association. He is heading the DNB training at VY Hospital for orthopedic DNB students. He is an ex-member of Educational Council for Ayush University of Chhattisgarh. He is a founder member for Society for Care in Emergency. He is a member and advisory committee member which runs the GATE lab in Chhattisgarh. It is a government project which runs the GATE lab. He is a director for Adarsh Nursing Institute, and sir is very much interested in the social work. He is currently a Swayam Sevak in RSS and currently holding the post of Prant Sangh Chalak for Chhattisgarh State. He is a member for National Body of Susanskrit Swasthya Samiti. He is a trustee of Saraswati Shishu Mandir Rajendra Nagar. He is a trustee of Vishwa Samvad Kendra Raipur. He is a Sanrakshak for Arogya Bharati Chhattisgarh. He is a president of Sabri Seva Sansthan Raipur. He is a founder member for Nirmay Arogya Samiti Chhattisgarh Raipur. He is trustee for Bhagwati Prakashan. He is a member for Vivekanand Yoga Anusandhan Parishad headed by Professor Nagendra.
He is heading the Chhattisgarh wing. He is a founder member for Jai Babaji Nath Seva Samiti. He is a Margdarshak for Bharat Mata Mandir project in Raipur. He is a member for Sushen Vaidya Seva Samiti Raipur. He is associated with Rawatpura Lok Kalyan Trust and associated with Sri Ramakrishna Mission Charitable Clinic at Raipur. So I think it is a wonderful combination. A physician, he is a very good from heart, and he is on the social service as well. And today we are privileged to have him here to delivering the prestigious oration for Chhattisgarh IMA, and he would be giving his thoughts on modern medicine with Bharatiya values. I think that is the need of our. हम आज जिस समाज में हैं उसमें आज जो हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसमें कैसे हम भारतीय हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारे भारतीयता के गुण हैं, उसको कैसे हम मॉडर्न प्रैक्टिस में इवॉल्व कर सकें, इस विषय पे सर को हम सब सुनना चाहेंगे। अब मैं सादर डॉक्टर पुर्णेंदु सक्सेना सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने Thanks for the other elaborate introduction. Thank you very much. Thanks IMA for giving me this very prestigious opportunity. And it is always a pleasure to come to Bilaspur, where I started my career as a consultant. Because when I came back to India, I first joined Apollo Bilaspur. मैं रोज लिंक एक्सप्रेस से आता था और रोज वापस जाता था, कभी कभी रुकता भी था। आप सभी लोगों के बीच मुझे आज बहुत आनंद अनुभूति होती है और एक बहुत जो जीवन मूल्य के विषय होते हैं वो आवश्यक होते हैं, परंतु शायद उन पर बात करना बहुत कठिन होता है और ऐसे कहें तो सरल भी होता है क्योंकि इसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। एनीवे विषय शुरू करते हैं। तो व्हाट मैटर्स एक्चुअली इज द वैल्यूज दैट मैटर। नाउ व्हाट आर वैल्यूज? हम सभी हमेशा कुछ ना कुछ काम करते हैं, पर जब हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया जाता है, वी आर फ्री टू डू थिंग्स ऑन आवर ओन, उस समय हम क्या करते हैं वो हमारे वैल्यूज से गाइड होते हैं। सो वैल्यूज गाइड यू व्हेन यू आर ऑन योर ओन इन अ वे। और वैल्यूज सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में हमारी होती हैं या किसी पर्सन की, मरीज की अपनी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो एक संस्थान की भी, एक समूह की भी अपनी वैल्यूज रहती हैं और उन वैल्यूज के बारे में बात करना आवश्यक रहता है क्योंकि उसी के आधार पर उस समाज का, उस ग्रुप का और प्रत्यक्षीकरण होता है कि वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी उनकी छवि होती है, कैसा उनका काम का परिणाम होता है। एंड दीज वैल्यूज आर नथिंग बट दी हैबिट्स एक्चुअली यू कैन से, और जिसको अपने यहाँ संस्कार कहा जाता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। वैल्यूज मैटर बिकॉज वैल्यूज आर what you are on your own। पर अब ये जो शब्द आता है कि can we be on our own, हम सब एक दूसरे से लिंक है। कोई भी अपने आप कभी भी सिर्फ अपने अनुसार काम नहीं करता। We are hardly anyone is on his own, everybody is linked to something or other। पर उसमें भी वैल्यूज होती है। एक्सेप्टेंस टू द गवर्नेंस ऑफ द लिंक, आप किस लिंक से गवर्न होते हो ये भी बहुत आपकी वैल्यू के ऊपर निर्भर होता है। मैं इंग्लैंड में 10 साल रहा और छत्तीसगढ़ में हम रहते ही है। अब हम सभी जानते हैं कि कुछ एक अथॉरिटीज रहती हैं जिनको हमारे यहाँ का आदमी बड़े आराम से एक्सेप्ट करता है। उसके गुरु ने बोल दिया, उसके परिवार ने बोल दिया, उसके समाज ने बोल दिया। तो हमारे महाराज जी हमको बताते थे, यार लोग मेरे नाम से पैसा लगाते हैं, 10 साल बाद आके बोलते हैं कि महाराज जी आपका वो पैसा मैंने आपके नाम पे लगाया था, अभी इतना हो गया। सो दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, प्रोवाइडेड हु दे द लिंक which they are true to is very important, crucial. So there are certain authorities which are very ready to accept, like family, caste, friends, and certain others we don't in our case। सरकारी नियमों को पालन ना करने में हमको कभी बहुत बुरा नहीं लगता। अच्छा, अब ये भी एक सापेक्ष चीज है। यूरोप में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वो आदमी अपनी वाइफ को या वो स्पाउस अपने पार्टनर को चीट नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु रेड लाइट होगी तो बड़े
निश्चित रूप से झुकेगा। तो आप किस लिंक को ऑनर करते हो ये भी आपकी वैल्यूज से डिटरमाइन होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज संस्कार्स और वैल्यूज दे मैटर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी improve them. Now why do we need to improve them? But we will grow the subject, we will take it further. But what are the Bharatiya values when it comes to how the relations of doctors, patients and governance is all getting complicated with the time? At this juncture, we must realize what are the Bharatiya way of doing the things. हमारी क्या मानसिकता थी, किस मानसिकता से हमारा समाज चलता है, और क्या हम उसके अनुरूप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो व्हाट वाज द वैल्यू फॉर डॉक्टर्स? सो दिस इज अ वेरी 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 गुड सेइंग। न त्वहं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशम। अने एक डॉक्टर का कहना है कि मुझे न तो राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न इस बात की कामना है कि मेरे को कोई अच्छा बहुत मैं पुण्य कर्म करूँ और मेरे को बहुत अच्छा अगला जन्म मिले, ये भी नहीं। मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मेरा पेशेंट जो है उसका दुख ठीक हो जाए। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी pious value that we have in our heart, and this is there for centuries, and this is very crucial. And ये जो भारतीय समाज में डॉक्टर की वैल्यू के लिए जो है, ये बहुत The ultimate enjoyment for a person जो ट्रीट कर रहा है, वो उसका यदि मरीज ठीक होता है तो वो जो एंजॉयमेंट है वो डॉक्टर होने की सबसे बड़ी, डॉक्टर होने का फायदा क्या है कि यू कैन एंजॉय दिस थिंग. दिस इज द अल्टीमेट एंजॉयमेंट दैट वी ऑल हैव. रेस्ट ऑल इज सेकेंडरी. वी कैन गेट मनी, वी कैन गेट पावर, वी कैन गेट अदर थिंग्स, बट दे आर ऑल सेकेंडरी. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव वैल्यू. नहीं तो ये डॉक्टर को ऐसे नहीं होना चाहिए, डॉक्टर को वैसे नहीं होना चाहिए, ये डिनायल का भाव नहीं है. एक पॉजिटिव वैल्यू ये डॉक्टरी के साथ दी गई है. एंड दिस इज वेरी फिजियोलॉजिकल. व्हाई आई कॉल इट फिजियोलॉजिकल? क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना भी स्ट्रेस रहे, एक अच्छी सर्जरी करने के बाद कम से कम 6 घंटे तक इतने एंडोर्फिन हमारे शरीर में रहते हैं कि वी फील गल, जिसको मजा आता है. एक अच्छी सर्जरी करके आप कठिन काम करके जब बाहर निकलते हैं, एक कठिन पेशेंट आईसीयू से निकाल कर जब हम बाहर भेजते हैं, उस दिन हमारा फिजियोलॉजिकली वी आर ऑल वेरी हैप्पी. दिस इज द एंजॉयमेंट दैट ओनली डॉक्टर कैन हैव. So I call it very physiological. And I will have to say that why we need to talk about it, because it takes some time actually, some maturity to attain this stage. Enjoying your practice. जो नए अभी इस कैरियर में आते हैं, नए डॉक्टर्स आते हैं, उनको शायद भविष्य की चिंता बहुत रहती है, परंतु जैसे जैसे वो सेटल होते जाते हैं, then they start to enjoy their practice. And if you don't, then you change your career. I have seen it. You must enjoy it. If you can't enjoy it, then you will feel unhappy in this and you change it. So this is one of the values, Bharatiya values for the doctor. Now what is the Bharatiya value for a common person? तो हम जानते हैं, हम समाज सामान्यतः चिकित्सक को भगवान के रूप में मानना, ये एक हमारी भारतीय समाज की विशेषता है. ये भी है कि डॉक्टर्स के पास खाली हाथ नहीं जाना. मैं फेल फाल हो गया था, तो उसके बाद हमारे मित्र हैं डॉक्टर श्रीधर राव, उनकी पोस्टिंग एकदम नक्सल एरिया धनोरा हाथ में, तो हम लोग सब चले गए उसके घर में रहते. और घोर जनजातीय एरिया था. रोज सुबह घर के बाहर या तो सब्जी या भाजी या दाल या चावल या कुछ ना कुछ लोग ला के रख देते थे. कौन ला के रखा हमको मालूम. एंड इट इज स्टिल हैपनिंग. सो भारत में डॉक्टर्स के प्रति एक ग्रेटिट्यूड, एक ऑब्लिगेशन, एंड डॉक्टर्स आर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल. And this value is not something which is rural or which is only in remote. It is there in our Shastras from very long. And I will have to. I have एक कहानी है अश्वनी कुमारों की है. पहले उसको थोड़ा सा बता देने में कोई बुराई नहीं. एक राजा थे डॉक्टर, वो शरियाती उनका नाम था. उनकी बेटी थी सुकन्या. अब सुकन्या के साथ वो लोग पिकनिक मनाने गए जंगल में, और वहां सुकन्या ने एक बांबी देखी. आप लोगों को कहानी शायद मालूम भी हो कि वो एक दीमक की बांबी थी, और उस बांबी में 2 मणि के जैसे चीजें चमक रही थी. तो सहज कौतूहलवश उसने एक लकड़ी लेके उस मणि को ऐसे टच किया, छेद दिया, तो उसमें से खून बहने लगा. तो वो एकदम डर गई और भागकर
अपने पिताजी राजा शरियाती के पास है। तो वो गए और फिर जब उन्होंने समझ में आया कि वो च्यवन ऋषि है जो ध्यान में बैठे थे और इतने लंबे समय तक ध्यान चला कि उनके पूरे शरीर के ऊपर और दीमक की बामें बन गई, और जब उनको कष्ट हुआ तो राजा अत्यंत विह्वल हो गए और लड़की जो सुकन्या थी वो भी बहुत विह्वल हो गई। फिर बात ऐसी हुई कि अब इस अंधे बूढ़े ऋषि की सेवा कौन करेगा, तो लड़की ने, सुकन्या ने कहा कि मेरी शादी आप महर्षि च्यवन से करा। तो च्यवन ऋषि के साथ उस राजकुमारी की शादी हो जाती है। अब ये बड़ा पीड़ा भरा विषय था कि एकदम नवयौवना कन्या और बहुत बूढ़ा ऐसा ऋषि। तो ऋषि ने फिर और अश्वनी कुमारों की और स्तुति की। तो अश्वनी कुमार आए, ऐसा कहते हैं कि अश्वनी कुमारों ने और च्यवन ऋषि को अपने साथ लिया और एक कुंड सरोवर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जब तीनों वापस आए तो तीनों एक जैसे दिख रहे थे। अब दोनों अश्वनी कुमार तो एक जैसे थे ही, अब च्यवन ऋषि भी उनके ही जैसे दिव्य और भव्य हो गए और एकदम वैसे ही दिखे। तो उन्हें बड़ा, और सुकन्या के लिए बड़ा विषय हो गया कि वह अपने पति को कैसे पहचाने। अपने पतिव्रता के धर्म के आधार पर उसमें च्यवन ऋषि को पहचान दिया, तो हैप्पी एंडिंग ऑफ स्टोरी हो गई। उसके बाद जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि च्यवन ऋषि, ही वॉज ए ग्रेट फिजिशियन, और उससे भी ज्यादा अश्वनी कुमार जो थे वो देवताओं के फिजिशियन। उस समय तक अश्वनी कुमारों को और यज्ञ में सोमरस का अधिकार नहीं था। तो ठीक हो जाने के बाद हाउ शुड बी दी ग्रेटिट्यूड, तो च्यवन ऋषि ने यज्ञ किया और अपने ससुर शरियाती को बुलाया और बोला यज्ञ करो। और उस यज्ञ में पहली बार अश्वनी कुमारों को सोमरस प्रदान किया गया। उसके लिए इंद्र ने और बाकी देवताओं ने कल्ला किया, बट द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड वाज सच दैट जिसने मुझे ठीक किया उसको मैं सोमरस पान कराऊंगा। दिस इज वेरी ओल्ड वैल्यू। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनको आउट ऑफ द वे जाके प्रिविलेज फील कराना और उनको उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, ये हमारी बहुत पुरानी वैल्यू है। तो हम डॉक्टर्स के पास कभी खाली नहीं जाते। हमारे यहाँ द वैल्यू ऑफ पब्लिक है। तीसरी वैल्यू है कि शासन का क्या। अब रावण अहंकारी था, रावण बड़ा दुर्दम्य था, ये सब बातें हैं, परंतु हम समझ जाते हैं कि रावण ने, इंद्रजीत ने लक्ष्मण को मार दिया। The whole story could have flipped it to other side, परंतु सुषेण वैद्य जो लंका के राज में रहता था, रावण के अंदर काम करता था, उसको लेकर आए और उसने लक्ष्मण का ट्रीटमेंट किया। Now this shows you what was the tradition. The tradition was minimal interference with and allowing the doctor to work to their ethics and to their values, to their profession without interfering much. And ये सिर्फ डॉक्टरी के साथ नहीं था। हमारे यहाँ जो राज्य की कल्पना है उसमें भी कहा जाता है न राज्यम न च राजासी, यानी कि न तो राज्य थे और न राजा था, न दंडे न च दांडिका, यानी न तो कोई दंड देने वाला था और न दंड का कोई प्रावधान नहीं था। धर्मेणेव प्रजा सर्व रक्षन्ति स्म परस्परम, यानी धर्म के अनुसार एक साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए प्रजा एक दूसरे की रक्षा करती। तो ये हमारे देश में डॉक्टर्स के प्रति पब्लिक की और राज्य शासन की व्यवस्था। So give a free hand, respect their neutrality, allow self-administration and encourage training and facilitate approach to all, यानी अपने दुश्मन को भी और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ये उस समय की बात थी। Later on, however, चरक की संहिता में ऐसे आता है कि doctors should have a preferential service to kingdom. Anyway, so these were our traditional values. Now the question is, when we are thinking about how the situation among खास करके मरीज और डॉक्टर के संबंध, जिस प्रकार से तरह तरह की खबरें आती हैं, तरह तरह के व्यवहार हमको रोज दिखते हैं, केसेस रहते हैं, मार पिटाई रहती है, डिस्ट्रक्शन रहता है डॉक्टरों के ऊपर। आपको एक बताने में मुझे कोई गुजरात के एक डॉक्टर है, उन्होंने एक बुक लिखी, वो आज की जो स्थिति है उसको बड़ा सही चित्रित करता है। तो डॉक्टर साहब बस से कहीं जा रहे थे, जैसे ही वो बस में चढ़ने के हुए
तो किसी ने उनकी पॉकेट मार दी। वो पॉकेट मार के भाग गया। अब वो पकड़ो पकड़ो चिल्लाए, पर चूंकि उनको जाना था इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया और बस में बैठ गए। अब सब लोग जो है वो बड़े बोले, अरे राम देखो कितना अपराध बढ़ गया, बेचारे गरीब आदमी की, इसकी बेचारे की जेब कट गई और कैसा हो गया, ऐसी बड़ी सहानुभूति पूर्वक बातें उसके बारे में चल रही। इतने में वो डॉक्टर को पहचानने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, तो उसने जो कहा, डॉक्टर साहब आपके पास टिकट के पैसे हैं कि नहीं? मैं देता हूँ। तो डॉक्टर साहब नहीं मेरे पास टिकट के पैसे हैं। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उसके बाद बस में संवाद पूरी तरह बदल गया। सब लोग बोले आप इसको समझ में आया जब जेब कटती है तो कैसे बदला। सो दिस इज एक्चुअली, ये किताब लिखी है उसमें। सो नाउ this values, where are the values and how we are suffering because of that is very important. So we need to investigate what is happening. Now how to investigate? It is very difficult. भारत में इतनी विविधता है, डॉक्टरों को जेब कतरा भी मानते हैं, डॉक्टर को भगवान भी मानते हैं, सब है। हमारा, हमको अकेले छोड़ दोगे तो किस किस प्रकार का विचार हमारे हृदय में आता है विभिन्न लोगों के, इसको किस प्रकार से फ्रेम में करेंगे। वी नो कि इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सबको, सभी लोग डॉक्टरों को छोड़ मानते हैं, ऐसे नहीं। तो हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। परंतु इतने विविधतापूर्ण व्यवहार में किस प्रकार से चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए, उसका भी भारत को बड़ा अच्छा अनुभव है। मैं 3 चीज लिखा हूँ, तो सिर्फ कहानी याद कर रही थी। अभी सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, बीच में क्या हुआ, चंद्रहासिनी देवी का अपना मंदिर है। चंद्रहासिनी देवी के मंदिर में मंदिर देवी का है, वहां बलि चढ़ती है। तो बलि इस विषय को लेके गायत्री परिवार और राज परिवार में थोड़ा सा टसल हो गई। एक तरफ थे जो बोलते थे नहीं बलि नहीं चढ़ना चाहिए, एक तरफ थे जो बलि चढ़ना चाहिए, मामला केस कोर्ट तक भी गया वगैरह। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि व्हाट इज, भारत में सभी प्रकार के व्यवहार चलते हैं। मैं पूछा एक्चुअली कि इसमें होना क्या चाहिए, तो एक ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे बताया कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया कि वी हैव गॉट अ स्पेक्ट्रम ऑफ बिहेवियर इन आवर सोसाइटी नाउ अकॉर्डिंग फॉर दिस मैटर। सो ऑन द वन हैंड नर हत्या और नर बलि भी चढ़ती रही, कैनिबलिज्म। देन देयर आर, जो चलता है वो चलता है, ऐसा भी समाज है, नॉर्थ ईस्ट का समाज है, अपने प्रदेश में भी है कि आदमी को छोड़ दो बाकी जो कुछ भी चलता है वो सब चलता है, ऐसे वाले भी हैं। फिर कुछ लोग हैं जो सिलेक्टेड एनिमल्स खाते हैं, सिलेक्टेड नहीं भी खाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ एग्स खाते हैं, बाकी वेजिटेरियन। कुछ लोग हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, मिल्क भी लेते हैं। फिर कुछ लोग सिर्फ सिलेक्टेड वेजिटेरियन, फिर दूसरी तरफ जिसको हमारे दूधाधारी मानते हैं, सिर्फ अन्न और दूध। तो देयर इज अ होल लॉट ऑफ बिग स्पेक्ट्रम, बहुत विविधतापूर्ण व्यवहार अपने देश में है। तो उसमें हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो उन्होंने बोला कि सी फॉर योर daily existence a certain part of the spectrum may be more realistic for you, there is no doubt about it, and you are free to follow that, but the vegetarian end of the spectrum is definitely more preferred if you want to हृदय की शांति चाहते हो, आत्मा की उन्नति चाहते हो, स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हो, तो then gradually you should move towards the vegetarian end of the spectrum from wherever you are. So the idea is to set the direction. We cannot define कि हाँ ऐसा ही व्यवहार और ऐसा ही वैल्यू और ऐसी ही प्रैक्टिस होना चाहिए। इतने विविधता भरे देश में वो संभव भी नहीं है। बट हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट इस प्रकार की चीजों के लिए है, दैट इज टू सेट द डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज ऑल वी कैन सेट, एंड वी हैव गॉट इट सेट वेरी राइट फॉर जनरेशंस। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे में नहीं रहना, प्रकाश में है। असतो मां सत्यमय, झूठ में नहीं रहना, सत्य की तरफ हम। मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु की तरफ नहीं जाते। जीवन की रक्षा करना है, जीवन की वैल्यू करना है, ये भारत की वैल्यू है और ये डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं। सारी दुनिया की एक बहुत सामान्य वैल्यू है। हम सब डॉक्टर्स हैं, हमारा प्राइमरी उद्देश्य ही मृत्यु से दूर और जीवन की तरफ है। सो what we can do is actually when it comes to values, only thing we can do is direction is what we can set and we start from wherever you are. अब इस अपने डॉक्टर्स की वैल्यू और पब्लिक की वैल्यूज के विषय में हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। तो अब ये बहुत विषय हम सबके लिए इंट्रोस्पेक्शन का है कि वैल्यूज ऑफ ए कॉन्टेम्परेरी डॉक्टर्स क्या क्या है। अब मेरे वैल्यूज का मैं बहुत
परिभाषाओं में नहीं जाता हूँ, पर मैं जब वैल्यू कहता हूँ तो उसका मतलब है कि व्हाट गवर्न्स हिज और हर डिसीजन मेकिंग। किसी डॉक्टर को अकेले छोड़ दोगे, वो अपने तय जब काम करता है तो क्या सोचकर निर्णय लेता है। निर्णय क्या लेना होता है, हमको उसको ट्रीट करना है कि नहीं, मेरे को क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना है कि नहीं, मेरे को सर्जरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे को इस पेशेंट को एडमिट करना चाहिए कि घर भेज देना चाहिए, इसको आईसीयू में रखना चाहिए कि, यही तो हमारे डॉक्टर्स के डिसीजन। ये डिसीजन करते समय हमारे दिमाग में क्या चीज है, कौन सी हमारी सोचने की बातें हैं जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसका हम एनालिसिस करें। So obviously the first thing that our value is, first decision making idea that we have is the clinical condition of the patient. I think that is the only thing which should direct what you do with your patient. And this is ideal that it should be, but is it always, does it happen always? It's not true. Right? We need to tailor make the treatment as per social. उसका भाई क्या कह रहा है, उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब विचार करके हम फिर हमारा मन बदल लेते हैं। पर सिर्फ उतना ही नहीं रहता है, हमारे ऊपर दुनिया भर के पेमेंट करने के भी और दबाव। हम सब कर्जा लेके अस्पताल बनाया है, उसकी किस्त पटानी है। हमारे को एक्सीडेंट होके आया है, उसके मालिक ने कहा है कि डॉक्टर साहब इसका ज्यादा खर्चा मत करना, मैं दूंगा तो सही। तो ऐसे गवर्नमेंट हो गए, बैंक हो गए, रिफरल करने वाले हो गए, ऐसे जो दुनिया भर के लोगों को जिनको हमको देना होता है, उनके बारे में भी हमको कई बार सोचते हैं। फिर कई बार हमको जो मिलना होता है उसके बारे में भी सोचते हैं कि यार चलो MRI कराएंगे, थोड़ा बहुत उधर से भी आएगा, बैंक में भेजेंगे, पैथोलॉजी भेजेंगे। तो वो भी एक हमारा, कई बार ऐसा होता है कि हम इस बारे में भी सोचते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं। और कई बार तो सिंपली डिजायर टू मेक मोर मनी एंड एंजॉय लाइफ, दैट आल्सो कम्स थ्रू इन आवर माइंड। नाउ दिस इज इन फैक्ट इज ट्रू। किसी कोई जो पब्लिक इसको समझ में आया जेब कैसे कटती है, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता। वी ऑल नो दैट ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स गो थ्रू आवर माइंड एंड दैट डिटरमाइंस हू वी आर। नाउ दैट इज ऑलवेज, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट the same thing happens with the common person. कंप्लीट ट्रस्ट भारत में है, डॉक्टर भगवान है, लोग उसकी बात मानते हैं, इलाज करवाते हैं, रिलाइज ऑन डॉक्टर एंड कंप्लीटली ट्रस्ट इट हैपेंस। बट देन वो आदमी धीरे धीरे वो विश्वास कम होता है तो क्या होता है, वो फिर डॉक्टर से पूछता है कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, अच्छा इसका क्या घाटा है। फेयर इनफ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली इट इज गुड दैट ही आस्क्स प्रोस एंड कॉन्स एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। पर फिर उसके बाद फिर कुछ और क्रिटिकल होता है तो काउंटर चेक काउंटर चेक और क्रिटिकली सुपरवाइजिंग ये भी करता है। वो गूगल में जाता है, 4 लोगों से पूछता है, खड़े होकर देखते रहता है, डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन लगाने के पहले ग्लव्स नहीं पहने थे, आपने साफ नहीं किया था, आपने एंटीबायोटिक नहीं दी, ये सब उसके दिमाग में आता है। सो गूगलिंग अराउंड एंड सुपरवाइजिंग क्रिटिकली। फिर उसके बाद और भी सियाने लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मरीज ठीक होना चाहिए, बाकी आप जानो, आपका काम जानो। एंड दिस इज काइंड ऑफ थ्रेट। इसे कई प्रकार की होती है। डॉक्टर आप भगवान हो, बस आप ये सब मुझे मत बताओ कि इन्फेक्शन होगा या फिर वो नहीं भी जुड़ सकती, ये सब मत बताओ, आप भगवान हो और ये पूरा ठीक करके लेके जाना है। सो इट इज इंसिस्टिंग ऑन गुड रिजल्ट। और जब उसके पास जरूरत होती है तो 4 जगह से फोन कराएगा, पॉलिटिशियन से कराएगा, मॉब लेकर आएगा, कई बार पूरी भीड़ आ जाती है। एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन कि इसको बहुत सीरियस एक्सीडेंट है या इसकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। They come with a value that insisting on good result, come what may. That is what their decision-making plan going on in their brains. So these things are happening in the brains or mindset of the common people. Now, what are the values for governing ministers? What governs their decision-making regarding health policy? So, on the good hand, you can say interference-free and fair services for everyone, everywhere. तो दे एक्ट लाइक ए फैसिलिटेटर कि हाँ भाई ये डॉक्टर हैं, यहाँ पे मरीज हैं, इनके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, सब जगह सुविधा हो, ये एक माइंड सेट होता है। पर जैसे जैसे उनका नेतागिरी और उनके पावर बढ़ती है तो देन दे स्टार्ट टू प्रिपेयर, इसको यहाँ पर विशेष, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष सहायता होनी चाहिए, ये यहाँ पर विशेष व्यवस्था है, प्रिफरेंशियल कंट्रोल दैट कम्स नेक्स्ट। तो दे बिकम सर्विस कंट्रोल।
और फिर एक ऐसी स्थिति भी आती है कि सारी सभी समझ देंगे, जिसको बोलते हैं ना सबका मालिक एक, all health problems are to be dealt with by Plana and this and that. So, and then comes the electoral vested interest. या मैं इंश्योरेंस के बारे में बहुत ओपन हूँ, मेरी नितिन से भी पहले बात हुई। मेरा हिसाब बहुत सा है, यदि सरकार के पास 1000 रुपए है और उससे वो एक आदमी का इलाज करा सकती है, तो वो ऐसा नहीं करती। उस 1000 रुपए में वो 10 लोग का इंश्योरेंस कराती है, उसमें से 100 रुपया इंश्योरेंस कंपनी ले जाती है, इलाज के लिए 900 रुपया बचता है, बट स्टिल इट इज प्रिफर्ड फॉर देम बिकॉज उसमें एक का भला होता है और यहाँ 10 लोग का भला होता है। इट इज इलेक्टोरल गेम। एक्चुअल इलाज के लिए भले 2 पैसा कम हो जाए, पर आप ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाते। सो देयर आर इलेक्टोरल बेनिफिट्स फॉर एवरीथिंग एंड दैट आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन वेल। एंड आफ्टर ऑल हम सब जानते हैं मनी मैटर्स। सो कौन सी दवाइयाँ आएंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, अपने देश में इसको विकसित करें कि बाहर से मंगा लें, बाहर से। सो ऐसे लॉन्ग लिस्ट है। एक तरफ तो बहुत अच्छे वैल्यूज भी हैं, दूसरी तरफ ऐसी भी वैल्यूज हैं जो काम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्टेट। नाउ दिस गवर्नमेंट इज जस्ट अ गुड फैसिलिटेटर एंड डॉक्टर्स आर कंसर्न अबाउट नथिंग बट द पेशेंट्स वेल-बीइंग and patients having full trust। एक ये स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एक एंड पर यदि हम बात करेंगे तो समाज में ये जो समस्याएं आ रही हैं जिससे हम रोज रूबरू कम, निश्चित रूप से वो खत्म ही होंगे। पर एक दूसरा एंड भी है कि जिसमें गवर्नमेंट हैज गॉट एवरीथिंग गोइंग ऑन हिज माइंड, पॉपुलिस्ट मेजर्स, मनी मेकिंग पॉलिसीज। डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ अपने भले के लिए, अपने आर्थिक भले के लिए, अपने गेन के लिए ही निर्णय कर रहे हैं। और पेशेंट जो है वो एकदम कैसे भी करके इवन थ्रेट एंड वायलेंस की स्थिति में आए कि मुझे मेरा पेशेंट ठीक होके होना चाहिए। ये जो एक्सट्रीम्स हैं, ये इस प्रकार से दोनों तीनों चीजों का बैलेंस जब तक होगा नहीं तब तक ये स्थिति सुधरेगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इंप्रूव दीज वैल्यूज, हाउ टू गेट आउट ऑफ दीज विशियस सर्कल। So obviously there could be individual efforts. I think individual efforts are the most common. At the end of the day, we should try at our own level to improve the values. And it applies to all, doctors, people and politicians. So individual efforts for doctors, I think the way forward should be to try to steps towards the higher end of the spectrum more often. I'm not saying every time. You cannot do the same thing every time, but try to do it more often while making decisions for medical management. Try to see that क्या मैं सिर्फ पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है उसको क्या आवश्यकता है, वही मेरा कंसर्न है। हमको कई बार we won't be bothered. See, we need to pay others, we need to get money, that is true, but it should not affect our decision making regarding the treatment plan. Treatment plan should be decided not by anything else but clinical need of the patient, maybe some social circumstances, and this should happen. It may not happen every time. We have got a lot of pressures from many aspects, but it should happen more often. And every time, if not up to the extreme right, but at least we should try to move our decision making at least one step to a better side. This is something we should analyze our behavior every time when we make decisions for our patients. The same is true for, I think there should be a kind of training और ये बात पर समाज में भी चर्चा होना चाहिए कि डॉक्टरों के प्रति विश्वास रखो। आफ्टर ऑल डॉक्टर्स आपके प्रति अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उनके प्रति जहां तक संभव हो वहां तक विश्वास करिए। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पर हर समय संदेह की दृष्टि से देखना ये ठीक नहीं है, और थ्रेटनिंग और वायलेंस ये तो ठीक नहीं है। यदि आपके मन में गुस्सा आ रहा है तो एक मिनट ठहर जाओ, कम से कम बात करके देखो। ऐसी एक ट्राइंग टू मूव वन स्टेप ऑन द बेटर साइड। अगेन दिस एफर्ट शुड बी मेड ऑन द इंडिविजुअल लेवल। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इस बात की कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर्स को कम से कम इंटरफियर किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको कंट्रोल कर लेना
और उसके माध्यम से अपने इलेक्टोरल या पर्सनल बेनिफिट गेन करना, ये कम से कम हो। हर बार हर एक का जो हम निर्णय करते हैं उस समय इस बात की चिंता हो। तो ये क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स या सिर्फ पेशेंट्स या सिर्फ गवर्नमेंट ठीक करेगी तो ऐसा नहीं होगा। ऑल ऑफ अस विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम टू डू दिस थिंग्स। नाउ इंडिविजुअल एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक ग्रुप एफर्ट्स आर स्टिल मोर इम्पोर्टेंट, because many a times, especially when you would see the new doctors coming to join the practice in your city, they are very much under peer pressure कि मुझे ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसे किया, उसका ऐसे हो गया, वो ऐसे करता है, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। It is peer pressure, and in fact, friends inculcate good or bad values in a person. So this is happening very early in our career start. So this group efforts. What are the groups? I think IMA is a very strong group of doctors, and they also demonstrate a different spectrum or the wide spectrum of values. यानी I think कि डॉक्टर्स का जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हों या IMA का है, उसमें भी वैल्यूज के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए ना। हम अपने आप के बारे में भी सोचें, एसोसिएशंस के बारे में सोचें। तो प्रोग्राम्स टू नर्चर टीम प्रैक्टिस, क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रेशर्स, ये बहुत कम होते हैं। खास करके वैल्यू और अच्छी व्हाट इज द करेक्ट और क्लीन प्रैक्टिस, इस विषय पे चर्चा बहुत कम होती है। हालांकि एजुकेशन और स्किल इन्हांसर्स तो होते हैं, पर उनके भी प्रति वो जब हम करते हैं एजुकेशन और स्किल वाले, तो उसके पीछे मानसिकता क्या रहती है, तो ध्यान में आता है कि उसके सिवाय स्पेशली IMA के इसमें आप देखेंगे या फिर अन्य एसोसिएशंस में देखेंगे, कई बार हम हमारा जो मंतव्य है वो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए संकीर्ण, वी द एलोपैथ्स, वी द डॉक्टर्स, वी बिकम स्लाइटली नैरो इन आवर अप्रोच रादर देन हैविंग अ मोर वाइड पर्सपेक्टिव। उससे भी और आगे जाकर देखेंगे तो एकेडमिक मार्केटिंग, कई बार स्यूडो एकेडमिक्स, स्यूडो साइंस, प्रोडक्ट मार्केटिंग, हमारे बहुतेरे कार्यक्रम जो है उसके आधार पर होते हैं। आज कोई मिल गया, चलो आज इसको इस विषय को आगे ले जाना है, आज इस सब्जेक्ट को आगे ले जाना है, आज इस सर्जन को आगे ले जाना है, आज इस टेक्निक को आगे ले जाना है, और इस प्रकार से एक भावना उसके आधार पर हमारे चलते हैं। और फिर अंत में तो खाओ पियो मजे करो, ऐसी भी एक बहुत बड़ी जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके परफॉर्मेंस में और उनके सोचने के तरीके में ये भी बातें आती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब गलत है, नहीं गलत नहीं है, बट आई थिंक इफ वी वांट टू इम्प्रूव डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, देन एट एवरी स्टेप, एट एवरी action, we must try to move a bit towards the better side so that the balance can be restored, and especially for newcomers, what is good practice? इस विषय पर और अधिक समय देकर बात होने की आवश्यकता है। सोशल ग्रुप्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो एक प्रकार से परिस्थिति निर्माण हो गई है मेडिकल प्रोफेशंस को लेकर के, उसमें भारत की जो सामान्य समाज है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो या तो ये कहिए कि दे आर सो डिफॉर्म्ड दैट जिनकी ताकत है वो खड़े नहीं हो रहे। अब हमारे लिए सोसाइटी को लायंस क्लब, रोटरी क्लब का नाम आता है, पर आप भी बोलिए जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप इनसे बात नहीं करते। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप इन्हीं से बात करते हैं जिनको मैंने स्लाइड में लिखा है। हमारी जात है, बिरादरियाँ हैं, गुरु गद्दीज हैं, टेम्पल्स हैं, सोशल ट्रस्ट हैं। दे आर रियल पावरफुल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर सोसाइटी, but how are they working towards the health? And you realize that they are working, but possibly we are not utilizing them enough, or even I would say even in their performance there is a lot of variation, and again I will try to arrange them as to what motivates them to do work on the field of medical or health. Now seva, especially बहुत सी टेम्पल ट्रस्ट हैं, गुरु गद्दीज है, वो सेवा करती है। फिर कुछ एक बिरादरियां हैं, हम जानते हैं हमारे ग्रुप्स हैं, सोशल कम्युनिटीज हैं, टुगेदरनेस एंड ट्रस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू व्हाई। एंड हेल्पिंग हैंड्स। नाउ आज हम जानते हैं कि एक सामान्य, ठीक है बड़े अस्पतालों में तो इंश्योरेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत हो गई है, परंतु एक सामान्य नर्सिंग होम में, सामान्य छोटे अस्पताल में आज भी 80%, 70% जो पेशेंट्स रहते हैं वो दे पे फ्रॉम देयर पॉकेट।
But if you would analyze and see, they are not paying from their pocket. They get help from somewhere. कभी अपनी बिरादरी से लेते हैं, कभी एक्सटेंडेड फैमिली से लेते हैं, कभी कोई उनकी मदद करता है। सिर्फ आर्थिक इंश्योरेंस तो सिर्फ आर्थिक मदद करता है। आर्थिक में कितने पेशेंट हैं जो 3 महीने उसकी फसल उसका पड़ोसी जाके काटता है, उसके बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए उसके कोई और काम आते हैं, को ड्वेलर्स, को वर्कर्स। So a lot of effort is being done by social group on the one hand. But then sometimes you would also see that not always social values or social mindset is same. Sometimes they come and pressurize in a form of mob. Sometimes even hidden agendas. In many social groups and NGOs, there are hidden international agendas, and conversion is very important social issue which is being related. Most of these agencies are foreign funded. So social organizations also reveal a wide spectrum of behavior or the values through which they work. Now, third is to come on the political consensus. Now, this is very difficult. But I think कि स्वास्थ्य के विषय को पॉलिटिक्स का विषय नहीं बनना चाहिए, ऐसा एक कंसेंसस क्रिएट होना चाहिए। और उसमें बेस्ट तो ये होगा कि हमें से प्रत्येक नागरिक अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए स्वयं समर्थ हो। ये आदर्श स्थिति है जिसके बारे में समाज के शासन को आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इमरजेंसी में सबको इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, तो जो हमारे यहाँ की नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है विच इज फुलफिल्ड बाय द पूल्ड रिसोर्स ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको इंकरेज करना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी कई परिवार ऐसे रह जाएंगे जिनको किसी भी प्रकार के सहयोग ना मिले, तो ऐसे लोगों को थर्ड पार्टी पेमेंट्स और प्रिफरेंशियल सर्विसेज के थ्रू वल्नरेबल सोसाइटी को के वल्नरेबल समूह को मदद करना, ये एक हो सकता है। पॉपुलिस्ट इलेक्टोरल मेजर्स शुड बी लिमिटेड विद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल सेल्फ रिलायंस के जो विषय हैं उनमें करप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ वैल्यू बेस्ड विषय हैं जिन पर पॉलिटिकल कंसेंसस होने से ये स्थिति सुधरेगी। ना ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, परंतु इनको हम व्यवहार में कैसे करें, ये एक विषय आखिरी आता है। क्योंकि वैल्यू की बातें ठीक है, परंतु नए आने वाले डॉक्टर्स को वो किस प्रकार से प्रैक्टिकल। अब सबसे पहले तो मैं खास करके जो नए आने वाले डॉक्टर, व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ एज ए डॉक्टर, दिस शुड बी वेरी क्लियर। If you are becoming a doctor, then focus on enjoyment through health service. It should be your prime goal. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसा नहीं बनाओ, आप पैसा बनाओ। पैसा बनाने के लिए डॉक्टर होने के बावजूद भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हो, आप रियल एस्टेट में काम करो, ट्रेडर करो, टीचर बन जाओ, बट डोंट मिक्स, डोंट ट्राई टू मेक। आप कितना भी पैसा जो है ना, आप कितने भी अच्छे, कई डॉक्टर्स खूब अच्छा पैसा कमाते हैं। हमारे शेल्बी वाले डॉक्टर साहब खूब उन्होंने टोटली करके और अपने करोड़ों का उनको प्रॉब्लम एंड लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब देखो डॉक्टर लोग कितना पैसा कमाते हैं। मतलब कमाते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो डॉक्टर नहीं होता, वो मान लो शिपयार्ड का काम करता होता तो उससे 100 गुना और था। तो एक चीज समझो कि डॉक्टर इज नॉट ए प्रोफेशन टू मेक, इट गिव्स यू अ डिसेंट लाइफ, देयर इज नो डाउट, बट इफ यू रियली वांट टू मेक मनी देन I would say leave this profession and spend time on something else. It is not it should not be actually, and it is not a profession जहाँ पे आप बहुत आप अडानी और अंबानी हो जाने का सपना करते हैं, तो डॉक्टरी मत करो, आप उसके लिए दूसरे काम है वो करो। And this should be made very clear to all the newcomers, I think, and I hope they would. I hope maybe most of you may agree with it. ना एक दूसरी जो सारी लड़ाई हिंदुस्तान में और सारी माल प्रैक्टिस जो है उसके पीछे एक ही चीज लड़ाई है, मेरे पास पेशेंट नहीं, पेशेंट कहाँ से है? एंड इसके लिए सब प्रकार की माल प्रैक्टिस होती है, कट प्रैक्टिस होती है, दवाई दुकान में बैठता है ऐसे कर रहा है। आई डोंट नीड टू से दोस थिंग्स, बट सारा झगड़ा जो है पेशेंट्स लाने का है। एंड आई थिंक कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कमर्स टू अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक कि इसमें एक चीज बहुत महत्व की है कि हम सब को समाज की मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है उसको जानना चाहिए और उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस करना चाहिए। अन्यथा ये होता है कि मेरे पास जो दवाई है उसकी मार्केटिंग करने के लिए मैं वो बीमारी का ढोल पीटने लगता हूँ। आई थिंक दैट शुड बी रिवर्स। एंड दो चीज़ों की मैच करना कि तुम्हारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में तुम्हारे हिसाब से मेडिकल नीड है क्या और तुम्हारी स्किल क्या है
और उसको मैच करने के लिए तुमको किसी सीनियर से पूछना चाहिए। मैं कई लोग जानता हूँ कि when I was in Bombay once, so there was a pediatric gastroenteroscopist. He would do only a gastroendoscopy in a pediatric population. He tried in Bombay at 20-30 years ago and then went back to Australia. तो ये होता है कि कम्युनिटी में उसकी उतनी नीड है क्या, और नीड अगर उतनी है तो उसके लिए रिफरल कहाँ से आएंगे, उसके लिए आपका पेशेंट पूल कैसा आएगा, उसके लिए आपको किससे, ये जब तक मैच नहीं होगा तो आप कितने भी, एक तो हमारे यहाँ इसको मैं बोलूँगा सब स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी, इसको लेकर भी विषय होता है. सो आई विल कम टू दैट मैटर, बट I would still say that for every skill there is a community need. Only you need to identify that from where comes the demand for your skill and how can you reach them ethically. That matching is important. And for that I think I would say, especially जब हमारे यहाँ सब लोग सुपर स्पेशलिस्ट होकर आ रहे हैं, तब ये चीजें बहुत महत्व की हो जाती हैं. First thing I would like to say that we are not super specialists, we are sub specialists. This is because when you know that you are sub-specialist, then you will come together and आज ऑर्थोपेडिक में 5 प्रकार की 10 प्रकार की सब स्पेशलिटी है, परंतु जब तक वो साथ में नहीं आएंगे तब तक it would be difficult for them to get cross referrals. It would be difficult for them to they will get frustrated, and I see them getting frustrated, and that is why I am saying that they should make a group so that they can, even if they need to bring patients, they can work together without hurting each other's interest. So that is make a group and remain loyal to your group and communicate with heart. That is important. Another thing is for the conflict, the patient-doctor conflict. I think it is very difficult issue. Nobody can stop it on his or her own. But one thing is, if you know who your patient is and if your patient knows who this doctor is, then these problems are less of. So there is a difference between a patient coming to you through a cut practice and then the patient coming to you with a proper referral. यदि वो किसी के रेफरेंस से आता है और आप उसको जानते हो तो आपकी अलग स्टेज की बॉन्डिंग हो जाती है, उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट होना कम होता है. अब हम जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम तो उसको मुर्गे की जगह खरीद कर काट कर लाते हैं, और वैसे में जब स्थिति आती है, जब कुछ गड़बड़ होता है, देन वी सफर. सो ये इसके लिए जो मैंने कहा था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जो क्रिएट होता है, सोशल बॉन्डिंग एंड टुगेदरनेस एंड बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी. भी उसी कम्युनिटी के हिस्सा है, पेशेंट्स भी उसी कम्युनिटी के हिस्सा है, और यदि उनके सोशल संबंध है, देन देयर इज ए बॉन्डिंग एंड टुगेदरनेस. इसको कल्टिवेट करना चाहिए. ये नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड ये होने के लिए डॉक्टर्स का एक सोशल आईक्यू होना बहुत जरूरी है. एंड फिर जो मैंने आपको बताया, पेशेंट किस वैल्यू के साथ आ रहा है. देयर आर पेशेंट्स हु कम टू यू विथ कंप्लीट ट्रस्ट, यू बिहेव टू देम. बट कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि दे विल क्रिएट प्रॉब्लम, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू विथ विच द पेशेंट इज कमिंग. और उसके सिवाय अपनी जो एक छवि बन गई है समाज में डॉक्टरों के लिए, उस छवि से यदि समाज में डॉक्टरों को एज ए होल बाहर आना है तो एवरी डॉक्टर शुड डू सम सेवा समवेयर अदर देन योर ओन क्लिनिक. ये करना बहुत आवश्यक है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डॉक्टरों के बारे में जो एक निगेटिव छवि बन रही है वो बनती चली जाएगी. नाउ वे टू ग्रो. अभी आप डॉक्टर बन गए, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपकी बड़े कमाई हो गई. नाउ वेयर टू ग्रो. हमारा एक फिर एक क्राइसिस मिडिल लाइफ क्राइसिस हो गया सब. बट आई थिंक वी शुड ट्राई टू grow in the field of seva, maybe some self-interest, diversify. You don't need to make all your money through your hospital. You can diversify in other business and do it. No problem with that. कई बार अपने बच्चों के लिए अस्पताल बनाने की हमारी बड़ी इच्छा हो जाती है, पर मेरा आगे इसमें कहना है कि ठीक है, हो सकता है एक जनरेशन, 2 जनरेशन, but at the end of the day, all these hospitals become a charitable trust eventually, and that is part of the society that we should see in practicality. How society should do in field of health if the values are to be perceived and further.
मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा कि दो चीजें हैं जो मेरे पास डोंगरगढ़ के अपने मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल बनाया है, हमको डॉक्टर नहीं मिल रहा, नर्स नहीं मिल रही, चला नहीं पा रहे, दैट इज ट्रू। सो हॉस्पिटल, सबको हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं और फिर कई बार हम जो हॉस्पिटल चलाते हैं हमको मालूम है कितनी दिक्कत है, वो कर नहीं पाते, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। देयर मैनी हॉस्पिटल्स इन छत्तीसगढ़ इज लाइन क्लोज। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल सोसाइटी चलाती है, पर वही एक काम है, ऐसा नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर ये भी कर सकते हैं, आप तय कर सकता है एक मंदिर कि हाँ मैं 10 मरीजों का फ्री इलाज करवाऊंगा, मैं 20 मरीजों का करवाऊंगा। सो देयर आर वेज एंड मॉडल्स इन विच द सोसाइटी कैन एक्ट, नीड टू बी डिवाइड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द सोसाइटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, बिकॉज आई वर्क इन यूके द सोसाइटी एज ए होल इज स्टेट सेंट्रिक, सबको ही, सरकार को ही अपना माई बाप मानते हैं। एंड जो NHS है वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, नेशनल इंश्योरेंस वहाँ का है, उसके आधार पे चलता है, वो स्टेट, सब कुछ स्टेट सेंट्रिक। दूसरी तरफ मार्केट सेंट्रिक सोसाइटी है USA, वहाँ इंश्योरेंस है, सब कुछ मार्केट बेस्ड चलता है, आपका प्रीमियम से लेके आपका ट्रीटमेंट तक, आपने कितना पैसा भरा, कितना आपका, एवरीथिंग इज मार्केट। मार्केट ऊंचा है और मार्केट नीचा है, इसके आधार पर आपकी हेल्थ सर्विस डिसाइड होती है। But in India, both this model exists. Means अपने जितने सरकारी अस्पताल हैं, बेसिकली वो यूके के जो स्टेट बेस्ड हॉस्पिटल है उसी के रिमेनेंट्स हैं, बट दे आर ओवर स्ट्रेच्ड एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल। पर आज ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी का वक्तव्य है कि हमारे सरकारी अस्पतालों को मैं प्राइवेट अस्पताल की जैसे सुविधा देना चाहता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि वी नो दैट दे आर ओवर स्ट्रेच्ड, दे आर प्रॉब्लम्स विद। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की अलग समस्या है, हम जानते हैं, अमेरिकन है, बहुत अच्छा है मॉडल, पर हमारे यहाँ कॉर्पोरेट को लेके एंटीपैथी। ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले ऐसे हैं, कॉर्पोरेट वाले ऐसे हैं, वो मीटराइज बिल चलता है, हर महीने कट कट कट, जैसे टैक्सी का चलता है वैसे इनका चलता है। सो दे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर क्राउडेड, ओवर स्ट्रेच्ड, कॉर्पोरेट आर इंश्योरेंस ड्रिवन, मनी मेकिंग मॉडल्स, full of advertisements, pseudoscience, costly to the patients, all these criticisms they take this. Now, in terms of value, our center of gravity lies neither with the state, not with the market, but it lies within the social institutes, and that's why I am saying that all these society and trust-based hospital, they should be also, they come to us, we are doctors and we are also part of society, they come to us. And we need to tell them two things, either if you are capable enough, then make good big hospitals, and doctors are not to be given services for free, you need to pay doctors. You do services, but doctors should be paid for. If you can't run the hospital, then do some financial resource pooling for your patients. And I think these alternative models for financial help and seva must be provided. Now, how to sustain the values for the government? I would say very little for these values because government is very difficult to listen to. But facilitator and planner, they should act as facilitator and planner, adequate assessment for the need of the society. What is the problem with the government? They don't know how many orthopedic surgeons, how many plastic surgeons, how many heart surgeons they need. They don't have the answer, they cannot distribute the manpower. So that kind of service, if they can provide, then there will be less interference with the doctors' acting responsibilities and sharing responsibility of healthcare with the society. The PPP model is what we must expect from the government, and that is all I have to say. I think the values are there to be assessed for act of each of us, whether we are doctors or patient or government, and then we should try to improve upon them, and that is how we can create a balance. Thank you very much.